देखो वेविकर मेथड में हमारा कंसेप्ट क्या था? वेविकर मेथड में हमारा ये कंसेप्ट था कि इफ पावर इज ऑड नंबर then sign of the curve changes. If power is even number, then no change occurs. ठीक है? Then no change occurs. ठीक है? अब कंडीशंस क्या थी? सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, fx इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, 2, 3, 4, 5. ठीक है? हमारी कंडीशन क्या आएगी? हमारी कंडीशन जो है अकॉर्डिंग टू आवर नोट्स क्या बनेगा? फर्स्ट वी ड्रॉ all the critical points or 0 on the x-axis. So in first bracket we get 1 as root, in second bracket 2 as root, in third bracket x equal to 3 is the root, in fourth bracket x equal to 4 is the root. So we represent all the points on the x-axis. ठीक है? As our notes, the graph always comes from positive side of greatest critical point. ठीक है? In some exceptional cases, it comes from negative side of greatest critical point. ठीक है? And this happens when the coefficient of x is negative. ठीक है? अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तो ग्राफ ऊपर से आने के बजाय ग्राफ नीचे से आएगा. ठीक है? बट यहाँ पर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होने की वजह से ग्राफ जो है वो ऊपर से आएगा. ठीक है? ये हमारा ग्राफ आया, 4 को टच किया, 4 के पावर में हमारे पास है ऑड नंबर, इसका मतलब इसका साइन चेंज होके नीचे चला गया. पहले कहाँ था? पॉजिटिव में, चेंज होके चला गया नेगेटिव. अब 3 के पावर में है इवन नंबर, इसका मतलब चेंज नहीं होगा. 2 के पावर में है ऑड नंबर, इट मींस साइन ऑफ द कर्व चेंजेस. ठीक है? एंड एट लास्ट वाला जो रूट है इसके पावर में हमारे पास है इवन नंबर, सो साइन ऑफ द कर्व डज नॉट चेंज. यहाँ माइनस इंफिनिटी, यहाँ प्लस. ठीक है? तो ये हमारा ग्राफ बन गया. ठीक है? ये हमारा ग्राफ बन गया, मतलब वेवी कर्व मेथड का. ठीक है? अब एक दो चीजें ध्यान में रखनी है, इसका सॉल्यूशन कैसे लेना है. ठीक है? इसका सॉल्यूशन कैसे लेना है? इफ ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, in case of greater than 0 or greater than or equal to 0, solution is above x-axis. ठीक है? In case of less than 0 or less than or equal to 0, solution is below x-axis. ठीक है? Solution is below x-axis. Also, if there is greater than or less than sign, we use the open interval. If there is greater than or equal to or less than or equal to sign, in that condition we use the closed interval. And minus infinity and plus infinity, they always kept in open interval. ठीक है? Because in open interval, ठीक है, in open interval we always exclude the endpoints. In closed interval we include the endpoints. ठीक है? इसको जल्दी से नोट कर लो. तो सपोज मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की कॉन्टेक्स्ट में ये सब चीजें आई थी. तो इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब ग्रेटर देन 0,
डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब लेस देन 0, ठीक है। इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब ग्रेटर देन 0, डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब लेस देन 0। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन निकालते हैं ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0, ठीक है। सॉल्व x minus 1, x minus 2, x minus 3, x minus 4, 3, 4, 5, 6 greater than or equal to 0. तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट we find the we draw all the critical points on the x-axis. So the points are 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 and 4. ठीक है? Graph always comes from positive side of greatest critical point. So like this. The power of 4 is even number. So the sign of the curve does not change. So it is in positive y-axis for the next critical point. Okay. Next, the power of 3. The critical point is 3 and the power is odd number. So the sign of the curve changes till next critical point. In next one, the power is even number. So again, the sign of the curve does not change. And at last, the power is odd number. So sign of the curve, okay, power so sign of the curve changes till minus infinity. Okay. Now we find the solution for greater than or equal to 0. Okay. So which portion is above x-axis? This is the portion above x-axis. And this point is also included. Okay. So the solution is x belongs to, कहां से आ रहा है? माइनस इंफिनिटी से कहां तक आएगा? 1 तक। और 1 पे क्या करेंगे? क्लोज। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जब लेस देन और इक्वल टू आता है तो हम क्लोज्ड इंटरवल का यूज करते हैं। तो माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन e टू 4 यूनियन 4 टू प्लस इंफिनिटी यूनियन एक पॉइंट भी है तो सिर्फ अगर एक पॉइंट रहे तो उसको सेट के अंदर में लिखते हैं, मतलब मिडल पे। अब 3 टू 4 और 4 टू प्लस इंफिनिटी, तो लास्ट सॉल्यूशन इज x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 3 टू प्लस इंफिनिटी यूनियन इन एलिमेंट्री सेट दिस इज, ठीक है। तो ये हमारा बन गया सॉल्यूशन, ठीक है। अगर मान लो तुमको यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 0 होता, सपोज लेस देन और इक्वल टू 0 होता, इफ तो एक मिनट, ये हो गया फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अब अगर इसी में मैं यहाँ पे लिखूं फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन fx लेस देन 0 या इक्वल टू 0 जो भी होता है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए मैं एक बार इस ग्राफ को दोबारा बना, वन टू थ्री, ग्राफ तो हमने देख ही लिया कैसा बनना है। यहाँ पे चेंज हो गया
यहाँ पे चेंज नहीं होगा, उसके बाद चेंज है। अब इसमें क्या क्या चीजें आ रही है, हमने क्या चाहिए, हमने चाहिए लेस देन जीरो वाला पोर्शन, मतलब ये पोर्शन एंड ये एक पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू जीरो भी है, तो x बिलोंग्स टू, डायरेक्ट लिख देते हैं 1 2 3 यूनियन इन एलिमेंट्री सेट दिस इज, ठीक है। how we use Weaver method in board exam or school level, because basically Weaver method belongs to competitive section, means IIT or mains level. So how to use this, how to use Weaver method in board level? देखो तुम्हारे लेवल में, स्कूल लेवल में एक अच्छी चीज ये दी हुई है कि सबके पावर में ऑड नंबर है, जैसा हमारा लास्ट क्वेश्चन भी जो था उसी टाइप का था। मैं उस क्वेश्चन को एक बार फिर से कर रहा हूं, ठीक है। वो था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड x for which y equal to x into x minus 2 पूरे का होल, ठीक है। हमने इसका this is an increasing function, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहला काम होगा f डैश ऑफ x निकालना, मतलब dy बाय dx, तो dy अपॉन dx इक्वल टू 2 इंटू अंदर में हो गया x स्क्वायर माइनस 2x इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन इंटू चेन रूल लगेगा ना, d बाय dx ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x, 2 इंटू इसका डिफरेंशिएशन बन गया 2x माइनस 2, तो इसमें से 2 को बाहर ले लेंगे, 4 टाइम्स ऑफ यहाँ पे बन गया x माइनस 2 x माइनस 1। देखो तुम्हारे लेवल में क्या आ रहा है, जो भी पावर आएगा सब ऑड नंबर में आएगा, ठीक है। तो हम स्कूल लेवल के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से करेंगे, सिंपल सी चीज है, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लो, मतलब 0 1 एंड 2, ठीक है। सारे क्रिटिकल पॉइंट्स लिख लिए, बस करना क्या है, यहां से स्टार्ट करो, प्लस माइनस प्लस माइनस, बस इसको यही ध्यान रखना। तुम्हारे स्कूल लेवल में क्रिटिकल पॉइंट्स लिखो और राइट साइड से स्टार्ट करो, प्लस माइनस लिख लो, बस हो गया हमारा वो सॉल्यूशन, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास सॉल्यूशन कौन सा चाहिए, सॉल्यूशन हमारा होना चाहिए पॉजिटिव वाला पोर्शन, इधर है माइनस इंफिनिटी, इधर है प्लस, therefore solution is y is increasing for x belongs to 0 to 1 union 2 to plus, ठीक है। हमने इसी को किया था, बट ये कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके पीछे रीजन हमारा क्या था, वेविकर मेथड के थ्रू आया। एक्चुअली बोर्ड लेवल में क्या किया है, छोटी छोटी कुछ चीजें दे दिया है और उसका डिटेल कुछ दिया नहीं, उसके पीछे जो डिटेल वाली कहानी है वो है हमारा वेविकर, ठीक है। तो इसको नोट करो। अब दो चीजें ध्यान में रखना है, एक हो गया हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और एक नॉर्मल इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। एक टर्म आता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन,
इसमें होगा एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन। अगर ये स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं रहेगा, सिर्फ रहेगा इंक्रीजिंग फंक्शन, तो वहां बन जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स, वहां पर इक्वल टू 0 भी मिल सकता है। ठीक है, मतलब कई क्वेश्चन में तुमको ऐसी चीजें मिल जाएगी। उसी तरीके से अगर हमारे पास रहता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, जब स्ट्रिक्टली वर्ड लग गया तो मतलब वहां पे इक्वल टू नहीं आएगा। एंड अगर सिंपल अगर हमारे पास आ गया डिक्रीजिंग फंक्शन, ये कंपटीशन में आएगा। ठीक है, सिंपल वे में आ गया डिक्रीजिंग फंक्शन, तो मतलब एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 में आ रहे हैं। प्रूव दैट y इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा is an increasing function of theta in 0 to pi by 2। ठीक है, इन 0 to pi by 2। ठीक है, 0 से पाई बाय 2 के बीच में। ठीक है, 0 से पाई बाय 2 के बीच में ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, 0 से पाई बाय 2 के बीच में ये हमारा हो जाएगा, मतलब ये हमको प्रूव करना है कि ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो कैसे बनेगा वो हम इसको देख रहे हैं। सबसे पहला काम क्या होगा, डी वाई बाय डी थीटा निकालना है। डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू, ये वाला जो टर्म है ये वाला, इसमें हमारा लग जाएगा कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या होता है, d बाय डी एक्स ऑफ u अपॉन v d बाय डी एक्स ऑफ u अपॉन v इक्वल टू v du बाय डी एक्स माइनस u dv बाय डी एक्स अपॉन d स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पे लगा है। तो dy अपॉन dx dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमारे पास बन जाएगा, यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं। टू प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, 2 प्लस कॉस थीटा इंटू 4 साइन थीटा का डिफरेंशिएशन 4 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा इंटू 2 प्लस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन थीटा, और माइनस थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया -1। तो नेक्स्ट बन जाएगा हमारा तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू
dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू 4 2 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो गया 1, तो 4 प्लस 8 cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर माइनस 1। इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा यहाँ पर हो गया हमारे पास 1 प्लस 2 cos थीटा। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन इन 0 to पाई बाय 4 into 1 plus 2 cos theta divided by 2 plus cos theta whole square minus 1। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात समझने की है, यहाँ इसको ज्यादा नहीं सॉल्व करना है। ठीक है, हमने क्या प्रूव करना है? हमने प्रूव करना है कि 0 से पाई बाय 2 के बीच में ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, मतलब 0 से पाई बाय 2 के बीच में dy अपॉन डी थीटा ग्रेटर देन 0। ठीक है, मतलब 4 प्लस यहाँ पे हमारे पास जो टर्म दिया है उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो इसको और आगे लिख लो। नीचे हमारे पास हो गया 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। वैसे इसको मैं डायरेक्ट भी यहाँ लिख सकता हूँ, बट तुम लोग को शो कर देते हैं, तो बनेगा 4 प्लस 8 cos थीटा माइनस 1 है तो माइनस 4 प्लस 4 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ये 4 4 हमारा कैंसिल हो गया। 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा, ये बन गया हमारा 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो टर्म हो गया उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये टर्म आ गया dy बाय डी थीटा। अब देखो 0 से पाई बाय 2 के बीच में ये फंक्शन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अब तुम 0 से पाई बाय 2 के बीच में कोई भी वैल्यू रख लो, लेट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 ले लो, 0 से पाई बाय 2 क्लोज है ना, तो dy अपॉन डी थीटा वो हमेशा पॉजिटिव लो, तो 4 इंटू 0 माइनस 0 अपॉन 2 प्लस 0 क्या हो गया? ये हमारे पास ओवरऑल टर्म क्या बन गया? इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। ठीक है, और कोई वैल्यू रखो, क्योंकि 0 से पाई बाय 2 में 0 से पाई बाय 2 में cos थीटा क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, इसलिए ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या होगा? पॉजिटिव। देखो ऑब्वियसली cos स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो रहेगी तो फ्रैक्शन 0 से 1 के बीच में, तो 4 cos थीटा जो होगा cos स्क्वायर थीटा से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, 4 cos थीटा जो होगा cos स्क्वायर थीटा से ऑलवेज ग्रेटर होगा। ठीक है, ऑलवेज, क्योंकि 4 नंबर हो गया ना, अगर फ्रैक्शन भी ले रहे हैं तो भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली वो cos स्क्वायर थीटा से बड़ा होगा। कोई और वैल्यू लेके थीटा इक्वल टू क्या लेते हैं? पाई बाय 3 लेते हैं, तो dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू 4 इंटू कॉस पाई बाय 3 हो गया 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 4 अपॉन 2 प्लस 1 बाय 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो
दिस इक्वल टू, यहाँ पे क्या बना 2 माइनस 1/4 divided by 5/2 whole square, and this value is always greater than 0. Therefore, we can say dy upon d theta greater than or equal to 0 for theta belongs to 0 to pi by, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया y is, it implies that y is increasing function of theta in 0 to pi by, ठीक है, y is increasing function of theta in 0 to pi by, ठीक है।